Good evening and warm welcome to all the participants. Today is Friday and we are having this session number 189. I request our guest, Mr. Shishir Kumar Saab. He is already joined us. I request all of you to join in welcoming him. Sir, welcome to this conversation. Good evening, sir. Friends, as I mentioned, these are Wise Views Leadership Conversations, which we are hosting every Friday. And this is session number 189. The topic is inclusive development by economic inclusion of women and persons with disabilities. And Mr. Shishir Kumar is leading the conversation today. So this introduction and sir's presentation will be for about 20-25 minutes. And after that, we'll have 40 minutes of Q&A. I take this opportunity and introduce Mr. Shishir Kumar Saab. He is the founder and director of Naman Seva Samiti, which is an NGO. Mr. Shishir is a remarkable leader and a visionary social entrepreneur and a relentless advocate for the empowerment of marginalized communities. Mr. Shishir Kumar is the founder and director of Naman Seva Samiti, as I mentioned, which is dedicated to creating sustainable, inclusive development opportunities for persons with disabilities, farmers, and women from marginalized communities. With over 2 decades of experience in social development, he has transformed the lives of over 17,000 individuals across Madhya Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, and Maharashtra. His journey is one of resilience and purpose. A near fatal accident in the year 1999 became a turning point, shaping his commitment to uplifting the most vulnerable sections of society. From fostering financial inclusion and entrepreneurship to championing organic farming and disability inclusive self help groups, Mr. Shishir has pioneered community driven models that have received national and global recognition. Under his leadership, thousands of rural entrepreneurs and farmers have gained access to markets, resources, and financial independence through farmer producer organizations, cooperative societies, and self help groups. His work has been instrumental in proving that collectivization and community driven initiatives can drive sustainable change. Thank you, sir. Thank you very much for joining us. And I will take 1 more minute to introduce my esteemed colleague, Dr. R. Prasad. He is the Senior Director at Academic Wing, ICFI Group. He brings 3 decades of rich experience as an entrepreneur himself, as a professional in corporate world, and now as an academic at ICFI. He holds BTech from IIT Bombay and PGDM from IIM Kolkata. Welcome, Professor Prasad. Thank you so much. Thank you so much for joining. The summary of what I presented about our guest. And now we will have the opening remarks from Mr. Shishir Kumar. Thank you, Over to you, sir. Sudhakar Rawji. Thank you very much. And first of all, मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं मध्य प्रदेश के एक बैतूल जिले से आता हूं, जहां जो कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे SC, ST एंड OBC बैकग्राउंड की जो फैमिलीज हैं 95 मोर देन 95%। यहीं से 1999 में हमने काम शुरू किया था, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम है। और अभी एट प्रेजेंट इंडिया के 4 स्टेट्स में मोर देन 1500 विलेजेस में मोर देन 50,000 फैमिली के साथ, इंक्लूडिंग 17,000 पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उनकी मेन स्ट्रीमिंग को लेके हमने फैसिलिटेट किया। एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट we can see the smile and happiness on their faces. Also, so many papers presented in different countries, but now we are dedicated that हम लोग यहाँ रह के इस मिशन को और आगे लेके जाएं। कम्युनिटी का वो तबका जिसमें महिलाएं तो आती हैं, लेकिन जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, वो कहीं ना कहीं पिछली पंक्ति में होते हैं। तो उनको वो अपॉर्चुनिटी देना जो पिछली पंक्ति से फ्रंट फुट पे वो आए, और वो फ्रंट फुट पे आके उनको अपॉर्चुनिटीज मिले और वो भी कंट्री डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। ये एक गोल को लेके हम आगे बढ़े। सो मैं शुरू करूंगा हमारे साथी रामेश्वर से। रामेश्वर एक गांव में रहने वाले इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिनको है, वो उस गांव के एक अभी युवा हैं, पर जब उनके साथ काम शुरू किया उनकी एज लगभग 16 इयर्स रही होगी, लेकिन जो मेंटल एज है वो अप्रोक्सीमेट जो 6, 7 साल, 8 साल के बच्चों की जैसी रही। तो ये बच्चों के साथ खेलते थे,
और उन बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ जब खेलते थे तो उनकी मम्मी एक एसएचजी की मेंबर थी, छोटे बच्चों के की मम्मी, और रामेश्वर की मम्मी भी एसएचजी की मेंबर थी। तो वो छोटे बच्चे खेलने के समय अपनी मम्मी के साथ वो एसएचजी की मीटिंग में जाते थे। तो रामेश्वर ने भी उस मीटिंग में जाना शुरू किया, और वहां जाके रामेश्वर जब इन्हें देखा कि ये लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये लोग कुछ करने की बातें करते हैं, तो उसने भी उसकी माँ से कहा, माँ मैं, वो शॉर्ट वर्ड्स बोलता है, माँ मैं भैंस दूध। माँ ने कहा भैंस दूध कहाँ भैंस लाएंगे, हम गरीब हैं। तो उसकी बहन ने कहा मुझे स्कॉलरशिप मिलती है, मेरे पास कुछ सेविंग है 5,000 रुपीज की, मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगी। उसकी मम्मी कोऑपरेटिव गई, वहां उसने बात की और उसको 25,000 का लोन मिला, और दोनों अमाउंट को मिला के उन्होंने एक भैंस खरीदी। और रामेश्वर ने फिर उस भैंस के साथ, उस भैंस का केयर टेकिंग करना, दूध निकालना, डेयरी पे दे के आना, और खुद अब वो सारे काम करता है। भले ही इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, लेकिन वो जब डिसेबिलिटी की बात करते हैं तभी हमें याद आता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात हो रही है। अदरवाइज वो भैंस को चराने भी खुद लेके जाता है, दूध भी खुद निकालता है, और यहाँ तक कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके इस ट्रेंड नाउ, कैसे ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग बनाना है, कैसे उसको अपने खेत में यूज करना है, तो हिज एबल नाउ। और उसकी लाइफ का ये टर्न, रास्ते में जब मैं जा रहा था तो वो वहां मिला अपनी भैंसों को ले जाते हुए, बकायदा बखूबी मुझे पहचानता है और बातें करता है, बहुत अच्छे से बातें करता है। आप उसकी इस स्माइल को देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। ये महादेव भाई हैं, महादेव चौड़ोका। ये देख नहीं पाते हैं, इनका चैलेंज है, इनका विजन नहीं है, लेकिन डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रेनिंग्स के बाद अब ये खेत में भी काम करते हैं। और ये अपने गांव में, इन्होंने जब अपनी प्रोसेस को समझा कि मेरा डेवलपमेंट किस प्रोसेस से हुआ है, दूसरे लोगों का डेवलपमेंट करने के लिए ये आगे आए। और ये उस गांव के विलेज वॉलेंटियर तो हैं ही कोऑपरेटिव के लिए, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी, जो विकलांग लोगों की संस्था है दिव्यांग भाई बहनों की, उसके ये लीडर भी हैं। इन्होंने अपने गांव के ऐसे लोग जो गरीब तबके से आते हैं उनको भी कोऑपरेटिव से जोड़ने का काम किया। 90 अकाउंट्स, उनके 90 फैमिलीज के अकाउंट वहां ओपन कराए। 50 ऐसे लोग हैं जो कि या तो सीनियर सिटीजन है, या पर्सन विद डिसेबिलिटी है, या विडो, जो कि गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। क्योंकि नाउ हिज ट्रेंड कि कैसे मैं गवर्नमेंट की स्कीम्स को एक्सेस करूंगा, उनको भी इन्होंने फैसिलिटेट किया वो स्कीम्स को एक्सेस करने में। और ये मास्टर ट्रेनर भी हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट से अपना खुद का रेस्टोरेंट चलाने लगे हैं, पहले जो किसी होटल में काम करते थे, या फिर छोटी छोटी दुकानें लगाने लगे हैं जो कि मार्केट में गांव के छोटे कस्बों में होती हैं, या फिर जो क्ले आर्ट है उसका काम करने लगे हैं। एग्रीकल्चर के लिए भी जो उनकी डिफरेंट कमोडिटीज हैं, जो एग्री क्रॉप्स हैं, उसके लिए भी इनको फाइनेंस की जरूरत होती है, तो वो भी लोग करने लगे हैं। ये नॉन एग्री सेक्टर की जो छोटी छोटी शॉप है, या फिर दूसरे जो हम फोटो में नहीं दिखा पा रहे हैं, वो सारे काम ये लोग अब कर रहे हैं। डेयरी में भी लोग जुड़ गए हैं और डेयरी भी लोग कर रहे हैं। ये जो प्रोसेस है, इनकी प्रोसेस ऐसी है कि एक कहावत है कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि हम अपनी चादर बड़ी कर लें? छोटे करने की बजाय चादर भी बड़ी की जा सकती है। तो उसके लिए एक टूल है लाइवलीहुड असेसमेंट। इनका एक असेसमेंट किया जाता है पहले कि इनकी एग्जिस्टिंग इनकम कितनी है और रिक्वायरमेंट कितनी है, दोनों के बीच जो गैप है वो कैसे गैप फुलफिल होगा, उसका बिजनेस प्लान बनता है। वो बिजनेस प्लान को फाइनेंस करने के लिए कोऑपरेटिव इनको लोन करती है, और लोन डिसबर्समेंट होता है और इनका बिजनेस स्टार्ट होता है। ये कोऑपरेटिव के पास पैसा आता कहां से है? जो कोऑपरेटिव के मेंबर्स हैं
उनकी सेविंग्स यहाँ ये अकाउंट खोल के डिपॉजिट करते हैं, और इनके भी इसी तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे बैंकिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो उनकी सेविंग हो या फिर ग्रुप सेविंग हो या फिर उनकी आरडीज हो, रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट्स हो। ये सारी प्रोसेस से कोऑपरेटिव के पास उसके मेंबर्स का, उसके शेयर होल्डर्स की सेविंग्स आती हैं, और उस सेविंग्स को ये मोबिलाइज करके लोनिंग करते हैं उनके मेंबर्स। भारतवर्ष में अभी तक ऐसी जो 4 कोऑपरेटिव हैं, महाराष्ट्र में है, उत्तराखंड देहरादून में है, हरिद्वार में है, फिर मध्य प्रदेश में है, जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। अभी तक इसमें 500 से ज्यादा गांव कवर हुए हैं, और अगर आप देखेंगे लगभग 13,000 इसके मेंबर्स हैं, जिसमें मोस्टली महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के आगे अपनी भागीदारी निभाई है। 10,000 से ज्यादा महिलाएं इसमें आ गई हैं। आप डेटा देख सकते हैं, विकलांग लोग भी इसमें पीछे नहीं रहे, वो भी आ गए हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें, इसमें सभी आज तक सभी कोऑपरेटिव्स ने मोर देन 6,600 फैमिलीज को सेल्फ रिलायंट बनाया है। उनके लिए उनको लोन तो दिया है, लेकिन लोन के पहले उनका असेसमेंट करना, उनको स्किल ट्रेनिंग देना और फिर हैंड होल्डिंग सपोर्ट करना, ये काम इन्होंने ही जो कोऑपरेटिव बनाई है, इनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी उसने की। अभी तक अगर हम देखें तो 2014 में ये कोऑपरेटिव शुरू हुई थी, और हम अभी 25 के शुरुआती दौर में 10 सालों में इन्होंने 20 करोड़ रुपए का लोन लगभग इन्होंने 6,000 फैमिलीज को देकर, उनको स्किल ट्रेनिंग देके, उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट करके, लाइवलीहुड स्टार्ट करके सेल्फ रिलायंट होने में इन्होंने अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई, जिसमें दिव्यांग साथियों को भी लगभग 1.5 करोड़ का लोन इन्होंने दिया है। और मैं एक सबसे खास बात जो मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि ये वो तबका है जिसको कोई लोन नहीं दे पाता है। लोन नहीं दे पाने की वजह है बैंकिंग की अपनी लिमिटेशंस हैं, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं कि किनको वो लोन देंगे। ये तो मेरे साथी विकलांग साथी एक गरीब तबके से आते हैं, इनके पास वो एलिजिबिलिटी नहीं है कि उनके लोन के क्राइटेरिया में ये लोग फिट हो सके, इसलिए ये कोऑपरेटिव में आते हैं। तो यहाँ इन्होंने 2 करोड़ लगभग 3 करोड़ रुपए ऐसा है जो इन्होंने इंटरेस्ट पे किया इनकी कोऑपरेटिव। तो इसमें खास बात यह है कि अगर इनकी ये कोऑपरेटिव नहीं होती, जो इन्होंने ही बनाई है, जिसके ओनर यही है, जिसके शेयर होल्डर यही है, जिसके डायरेक्टर्स यही है, अगर इन्होंने नहीं बनाई होती तो ये लोन कहीं ना कहीं किसी मनी लेंडर से लेते, क्योंकि बैंक के उसमें फिट नहीं बैठते एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, कहीं नहीं कहीं। कुछ लोग बैठ सकते हैं लेकिन मोस्टली नहीं बैठते। तो ये मनी कहीं ना कहीं मनी लेंडर्स के पास जाता, और जब मनी लेंडर्स के पास जाता तो कहीं ना कहीं ये इससे डबल जाता, क्योंकि मनी लेंडर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। तो इसमें जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, महिलाएं हैं, विकलांग साथी हैं, और डिफरेंट एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, मीडिया का कवरेज, सारी चीजें सभी ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है। ये एक मेरा छोटा सा पीपीटी था इसको लेके, जो मैंने आपके सामने रखा। नेक्स्ट अगर कुछ इसमें क्वेरीज या क्वेश्चन होंगे तो आई एम हियर टू रेस्पॉन्ड। और नमन के बारे में, बिकॉज मैंने सुधाकर राव जी को आज ही शेयर किया है, एक मेरा छोटा सा ब्रोशर है, उसमें सोशल मीडिया लिंक्स हैं, उस पे जाके डिटेल्स में देख सकते हैं और क्या क्या काम किए हैं, चाहे वो वाटरशेड हो, चाहे वो होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, सारे इन्हीं कम्युनिटी के लोगों के बीच में सारे काम हो रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका जो प्रेजेंटेशन है माइक्रो केस स्टडीज में आपने प्रेजेंट किया है, हाउ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, पर्सन्स विद डेफिशिएंसीज, पर्सन्स who are afflicted by some of the deformities are also finding economic assistance and living their life by your support from cooperatives, and they are able to lead lives that are helping their families as well. I think these are micro stories with a lot of impact. There is a clear-cut multiple case studies of impact that you have presented, sir. Thank you so much.
And this sums up what kind of work you have been doing over several years now across 4, 5 states and so many villages covering so many women and persons with disabilities. Initially, I was thinking disabilities you are handling only with physical disabilities, but even intellectual disability people also you have helped, and you have identified them and brought them to a source of help, and as well as create some livelihood for them to sustain the remaining part of their life. That's an amazing case study, sir. Amazing help that you have done. Thank you so much. We will thank you, and will request you to answer some of the questions that we have. We have two clusters of Q&A. पहला cluster में Professor R. Prasad will start the questions, and I'll come back for the second cluster. And उसके बाद अगर time है तो we will open the mic for members of audience to ask direct questions also for 5 minutes or so. Okay, sir. Right. Thank you. Thank you once again. Professor Prasad, please start. Thank you, Professor Rao. Thank you, Shishi sir. पहले no, when we first saw this, ये एक article था, हमारे colleague ने लिखा था नमन के बारे में, और we were very interested because that is the area in India which needs a lot of development. Gap तो उधर ही है, बाकी पूरे जो पैसे बनाने वाले हैं तो बना लेते हैं, जीना है वो जी लेते हैं, लेकिन these are areas, these are people who really need something in the middle which will help them to come up. And more maximum percentage of people in India will be more of this type. May not be disabled, but certainly people who need to be empowered. They feel that they cannot do, कर नहीं सकते हैं, and they need somebody who can give them that first 2 steps. वो जो पहले 2 steps लगाना चाहिए, उसके बाद then they are able to do what they require to do. So it's a very inspiring story, and we're very happy that we were able to have a person like you speaking to us from such an area. Thank you very much, sir. Thank you. The first question, sir, is how has been your early life, your journey, which has made you motivated? What has given you the prerna, utsah to undertake this mission? Thank you, sir. आप मुझे बैकग्राउंड में लेके जाना चाह रहे हैं बहुत पीछे, और जब मैं उन यादों को फिर से याद करता हूं तो मुझे बहुत कुछ याद आता है। एक्चुअली जब मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, आई डिड माय ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स, देन लॉ किया मैंने, और सारा कुछ करने के बाद मध्य प्रदेश में जब मैं काम कर रहा था तो हेल्पेज इंडिया के साथ मुझे काम करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला एज ए इंटर्न। तो वहां मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, आई गॉट अ वेरी बिग एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट में मुझे लग रहा था कि शायद लाइफ इज फिनिश्ड, अब आगे नहीं है कुछ। तो वहां से फिर मेरा ट्रीटमेंट हो गया। तो मैंने ईश्वर से प्रेयर की कि ईश्वर अगर मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं यहाँ कुछ ऐसा काम करूं कि जहां मेरे साथ दूसरे लोग मिलके हम कम्युनिटी में ऐसे गरीब लोगों के बीच में कुछ काम करें जिससे उनका डेवलपमेंट हो सके। तो ये एक बैकग्राउंड था, ये इंस्पिरेशन थी कि उन गरीब लोगों के साथ जब मैंने करीब 75 पंचायत में मैं उनके साथ रहा, मैंने उनकी तकलीफों को देखा तो मैं देख नहीं पाया। तो वो इंस्पिरेशन वही लोग हैं, उन्होंने इंस्पायर किया कि आप यहाँ हमारे साथ रह के कुछ ना कुछ करना है। तो यूनिसेफ ने के साथ पहले फर्स्ट काम हम करने का एक मौका मिला 100 विलेजेस में। तो जब वो काम कंप्लीट हुआ तो कम्युनिटी ने मुझे पकड़ लिया, रोक लिया कि नहीं, हम आपको जाने नहीं देंगे, हम मिलके कुछ करेंगे। तो नमन आया और फिर ये नमन का काम शुरू हुआ। थैंक यू। Thank you, sir. That's a very interesting anecdote that you recited about your accident, and how that provoked you to look at another side of life and then the time that you spent. Yes. Sir, we look at the next question. The smile on the face of that person who had that intellectual disability, that is inspiring. You showed one photograph where he has a slight smile on his face. Now, how did you get there? I mean, what is empowerment? Actually, the question is, how did you get him to get to that smile? How did you empower him? I mean, now he's smiling. Earlier, it may not have been that. So, what are the stages in such people, and how do you see that? I mean, how do you explain that to us? How do you empower? Is it okay just that you provide, you do the assessment and you provide the money and the training and it happens, or is there anything more to it? Yes, thank you, sir. Thank you for this question. Actually, sir,
जब हम देखते हैं समुदाय में, तो समुदाय में जो अपॉर्चुनिटीज है और जो उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस करना है, वो अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा गैप है। इतनी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, बट वो कैसे एक्सेस करें, ये इट्स ह्यूज गैप। तो यहाँ ये जो गैप है, इसको फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो गैप फुलफिल हो पाए तो हम, एक तरीका ये हो सकता है कि हम एक फैमिली के लिए, उसके लिए क्या करना है, उसकी असेसमेंट करके उसको उसकी लाइफ में चेंज लाने के लिए हम माध्यम बने, फैसिलिटेट करें। लेकिन ये कब तक होगा, ये कैसे होगा, और अगर हम एक एक फैमिली के लिए हम करेंगे, हम क्या करते हैं, उनको ट्रेंड कर देते। जैसे कि महादेव है, महादेव अब खुद महादेव खुद में एक लीडर बन गया है, जो इसकी विजुअली चैलेंज्ड है, जो वो उसने सीख लिया है कि मुझे पेंशन कैसे स्टार्ट होगी, मेरा मेडिकल सर्टिफिकेशन कहाँ से होगा, और मैं कैसे दूसरे लोगों को सेम प्रोसेस सिखाऊं, चाहे वो आइदर इट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग मैनेजमेंट और द एक्सेसिंग द गवर्नमेंट स्कीम्स, कुछ भी, दोनों ही। इसको मैं कहूं कि जो ट्विन ट्रैक अप्रोच है, वो उस अप्रोच से, यानी कि खुद अपना डेवलपमेंट तो कर ही रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ चल के दूसरे लोगों के लिए करना, ये एक बड़ी बात है। और जब इनका संगठन बन जाता है तो इनके अंदर एक ताकत आ जाती है, एम्पावरमेंट आ जाता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे साथी हैं। और जब ये मिलके बात करते हैं तो इनकी बातें सुनी भी जाती है, और अभी लोग सुनना भी चाहते हैं और करना भी चाहते हैं उनके लिए कुछ। तो इस गैप को दूर करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो वो गैप अगर दूर हो गया, अगर वो अपने अलावा दूसरों के लिए कुछ करने लग जाए, तो आई थिंक कि अब वो एम्पावरमेंट, आप उसको, इस इंडिकेटर को देख सकते हैं। थैंक यू सर। Thank you, sir. You have highlighted the aspect of the gap of access that people don't know क्या करना है, कैसा करना है, ये कैसा मिलेगा, मालूम भी नहीं है कि ऐसा है, चीज है जिससे फायदा हो सकता है. And that is one aspect which is clear. The other aspect is that when the community builds up, जब वो the community is stronger, then things become little more simpler. In the beginning, it may not be like that, is what I could understand. Thank you, sir. Let me move to the next question. Yeah, how do you form this cooperative? Because in the beginning stages, that will be the toughest place. So, क्या करते हैं आप? यस, गुड क्वेश्चन सर। बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि ये सवाल मेरे जहन में सबसे पहले आया था, और मेरे साथ जो मेरे साथी हैं उनके जहन में बहुत, हमारे लिए बहुत बड़ा, ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, कठिन सवाल था हमारे लिए। वो इसलिए था कि हमारे पास गांव से लोग आते थे, उनको लगता था कि शायद हम कुछ अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके बीच में है। और जब मैं कहता हूँ उनके बीच में है, तो मैं उसी गांव में करीब 14 साल रहा हूँ, इस आटनेर गांव में। और वहां पे पानी 8 दिन में एक ही बार आता था सर, ड्रिंकिंग वाटर, उस समय 99 की बात करें तो। और वो लाइट वहां केवल 6 घंटे आती थी, 24 घंटे में 6। बहुत सारी ऐसी चीजें थी, अभी ठीक हो गई हैं। तो यहाँ लोग आते थे हमारे पास कि भाई हम क्या करें, हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं। बट कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी थी जो हम लिंक करके गवर्नमेंट से, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ भी मीटिंग करते थे कि सर इनकी ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको कैसे कर सकते हैं। तो हमें सबका सपोर्ट मिला, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं था, वो थी फाइनेंस। बिकॉज हमारे पास फाइनेंस नहीं है। हम कोलोबरेट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, हम बैंक में गए, बैंक की अपनी लिमिटेशंस हैं, वो नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं। फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स में भी इनसे भी इनको फाइनेंस नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे पास एक आइडिया आया कि इन्होंने एसएचजीज तो बना ली लेवल 1 पे। अब एसएचजीज बनाने के बाद उनको एसएचजी लेवल पे फाइनेंस करने के लिए भी चैलेंजेस हैं। तो फाइनेंस कैसे हो, तो हमने इनको कहा कि तुम फेडरेट, क्यों ना इनको फेडरेट किया जाए, इनका एक फेडरेशन बना है। और वो फेडरेशन जब बना तो उस समय डीएफआईडी का एक प्रोग्राम था, पैक्स करके, तो सिविल सोसाइटीज के लिए। तो हमने वहां कोशिश की, तो 1 लाख रुपए का सपोर्ट इनको, इनके फेडरेशन को मिला। तो उस 1 लाख रुपए से इन्होंने शुरू किया
कि जो मोस्ट वल्नरेबल है, जिसको बहुत ज्यादा इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, ऐसी फैमिली, कोई महिला है जिसमें कोई हस्बैंड नहीं है, या ऐसी फैमिली जिसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हैं उनको, यानी कि कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ काम नहीं है, लाइवलीहुड नहीं है, तो उनको प्रायोरिटी पे कैसे, वहां से इन्होंने शुरू किया इसको। और जब इनको सक्सेस मिली तो इन्होंने कहा हमारा कुछ लीगल इंस्टीट्यूशन हो सकता है क्या। तो फिर क्योंकि रिक्वायरमेंट, डिमांड बढ़ने लगी, इजी एक्सेस होने लगा इनको, इनसे कोई पैसे लेने के लिए इनको प्रॉब्लम भी नहीं थी, इनको किसी के चक्कर भी नहीं लगाने थे, इनको इंतजार भी नहीं करना था, तो इनको इजी एक्सेस थी और ऑनेस्टी थी, ट्रांसपेरेंसी थी, ये सारी चीजें होने से डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई तो क्या करें, तो 21 वीमेन ने अराउंड 20,000 से इस कोऑपरेटिव की शुरुआत की 2014 में। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि तुम सब अपनी सेविंग्स को यहाँ डिपॉजिट करो। तो फर्स्ट 3 ईयर थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन नेक्स्ट 2 ईयर में इतने लोग बढ़ गए कि ये सेल्फ सस्टेन हो गया सिस्टम। अब इनको एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत नहीं थी आफ्टर 5 ईयर्स। अभी तो जो मैंने बताया 3 करोड़ रुपए इनके पास है, एवरी ईयर दे आर लैंडिंग मोर देन 3 करोड़ रुपीज। तो अभी तो दे आर सेल्फ सस्टेन एंड दे आर गेटिंग द प्रॉफिट एंड they are providing so many benefits to the community। तो ये इसके पीछे था सर कि इन्होंने ही दे डिसाइडेड कि ये हमारी कोऑपरेटिव होगी। अभी वो बोलते हैं हमारा भी रूरल बैंक है, although they are not having a license from the Reserve Bank of India, but they are following the guideline of the Reserve Bank of India. Reserve Bank of India people, they have visited here for learning the how they are कैसे कर रहे हैं। Bankers also they visited कि इनका कोई वो नहीं है, पैसा नहीं डूबता है, how they are, what is their process। तो ये बैंकर्स और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट, NRLM head CEO visited here to this cooperative society कि कैसे ये काम करते हैं, क्या प्रोसेस है। बट मैं तो ये कहूंगा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ऑनेस्टी, और इनका जो सिस्टम है कि सबसे पहले हम जो वेटिंग लिस्ट में आएंगे वो सबसे मोस्ट वल्नरेबल पर्सन को सबसे पहले इमीडिएट हमें सपोर्ट करना है। इनके जो इथिक्स हैं वो इनकी स्ट्रेंथ। थैंक यू सर। Thank you, sir. You have elaborated a model which looks very good on paper, but it is very actually getting implemented. And traditional management only talks about it. And real corporates do not essentially follow many of these values which are there. And you're actually highlighting to us that these things are possible, these things are happening, and these things can even improve. That itself is a huge motivation, sir. I have one more question, sir, at this stage, and that is you have highlighted values, honesty, transparency, ethics, being very fundamental to the formation of the cooperative. And you have also scaled. Now you have talked about thousands of villages. It's in the thousands. And when you are becoming large, you also have to have people who think like that in your leadership team. People who are key people. You need people who think like that. Now, how do you manage that part where you have to expand at the same time you can't compromise on the values? How do you do this, sir? एक्चुअली सर एक सिस्टम है सर, वॉलंटियरिज्म का सिस्टम। दिस इज ए विलेज वॉलंटियर लेड मॉडल। गांव से एक आदमी आता है जैसे महादेव है, और वो कहता है कि मैं मेरे गांव के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करूंगा, आई विल बी पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माय विलेज। वो उसको वॉलंटियर को हम नमन प्रेरक, उसको नाम दिया है नमन प्रेरक। नमन बिकॉज नमन इज वर्किंग, and there the name of the cooperative also the Naman Sahakarita Maryadit Naman Cooperative Society। so वो जो वॉलंटियर है वो वॉलंटियर वर्क करता है, दैट वॉलंटियर, वो ही वॉलंटियर बोर्ड में डायरेक्टर भी उन्हीं में से कोई, जिसको ये सेलेक्ट करते हैं वो ही बोर्ड में डायरेक्टर आता है, वो ही बोर्ड का इसका ओनरशिप में इसकी रोल में आता है। although the board is changeable every 3 years, every 5 years the board will change। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि कौन उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, दे विल इलेक्ट। उन्हीं में से जो अच्छे वॉलंटियर्स होते हैं, जो बोर्ड में नहीं जाना चाहते हैं, जो ऑपरेशन में जाना चाहते हैं, दे विल बी स्टाफ इन दीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। चाहे वो कोई महिला भी हो सकती है, कोई
यूथ भी हो सकता है। तो ये लोग उसके स्टाफ बनते हैं। जो स्टाफ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है वो स्टाफ किसी दूसरी कोऑपरेटिव में जाके स्टार्टिंग करता है और ये स्टाफ उनको सपोर्ट करते हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं। और उस बीच कुछ अगर टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत होती है तो नमन इज देयर। जो नई कोऑपरेटिव होती है नमन उनको जो स्टार्टिंग की जो ट्रेनिंग्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग्स हैं, उनके एक्सपोजर विजिट्स हैं, या उनको जो लीगल कंप्लायंसेस हैं उसमें नमन सपोर्ट करता है। फिर ये लोग ट्रेंड हो जाते हैं। उसके बाद आफ्टर 5 ईयर ये इंडिपेंडेंटली सब हैंडल करते हैं। ये एक इसकी प्रोसेस है सर। इवन सर नमन में भी सर जो स्टाफ आते हैं वो नमन में भी स्टाफ इन्हीं महिलाओं के बच्चे जो वॉलेंटियर बनते हैं स्टार्टिंग में, देन दे वो स्टडी करते हैं। अभी एक लड़का जयदेव है, वो कभी नमन प्रेरक हुआ करता था, एक एसएचजी की महिला का बेटा, बट ही इज इंचार्ज ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट एंड नाउ ही हैज शिफ्टेड इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है उसमें वो शिफ्ट हो गया है, बट ही इज सपोर्टिंग टू देम। तो ये एक प्रोसेस है सर। thank you sir. I think that was a wonderful elaboration. Yeah, the key to it is I think you've kept the DNA. जो DNA बोलते हैं हमारे, तो जो values का DNA है, I think you have kept that central to जो आप select करते हैं. And unlike in corporates where money dictates who will be the board member, or sometimes expertise, your expertise is there, but more than that it is you are part of the work and you have developed the expertise through the work. So it's a wonderful model, sir. And since you are implementing it, it's a working model. So congratulations on doing this much and coming to this stage and scaling it to that level. Thank you very much, sir. I hand it back to Professor Rao for the next cluster. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर। आपका आपका स्टोरी एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होगा जिन जिन लोगों ने आज इस वेबिनार में ज्वाइन करे। I think people from Rajasthan, people from our leaders from Dr. H.P. Singh from Rajasthan, Dr. Nesa Murthy from Rajasthan, many other people from Punjab, Telangana, Hyderabad, and various other locations have joined. I welcome all of them. They are enjoying this conversation and it is a beautiful motivational factor, sir. And मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस है मैं उसमें से चुन लूंगा, एक दो क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसके बाद मैं माइक ओपन करूंगा ऑडियंस के लिए। अगर वो लोग आपसे बात करने के लिए तैयार है और उनके क्वेश्चन अगर रेडी हो जाए तो वो लोग बात करेंगे आपसे। तो बीच बीच में मेरा क्वेश्चन मैं पूछूंगा सर। पहला क्वेश्चन ये है, इतने जो लिस्टिंग आपने किया है, जो जिन जिन सहायता के लिए प्रोग्राम आपने बनाया है और हेल्प किया है लोगों को, ये सब बहुत सारा एक्टिविटीज है, माइक्रो एक्टिविटीज है। ये करने के लिए आपको एक टीम की जरूरत होती है सर। तो जरा बताइएगा आपका लीडरशिप टीम का स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से आप लीडरशिप टीम को मेंटेन करते हैं, और एक ऑपरेशनल एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं तो अच्छा रहेगा सर। Okay. First of all, sir, Naman सेवा समिति इज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। हम तो नॉन प्रॉफिट हैं। नमन फैसिलिटेट करता है इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को कि वो आगे आए और आगे बढ़े। अभी तक नमन के फैसिलिटेशन से मोर देन 15-16 इंस्टीट्यूशंस फॉर्म हुए हैं और फंक्शनल हैं। नमन में एम्पेनल्ड एक्सपर्ट्स हैं सर डिफरेंट डोमेन में। अगर हम बात करें डिसेबिलिटी की तो डिसेबिलिटी डोमेन के उसके एक्सपर्ट हैं। अगर हम वाटर साइड की बात करें उसके एक्सपर्ट्स हैं। अगर हम बात करें लीगल कंप्लायंसेस की तो हमारे साथ उसके एम्पेनल्ड लीगल एडवोकेट्स हैं जो लीगल कंप्लायंसेस को देखते हैं। डिफरेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो नमन के अकाउंट्स को अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट देखते हैं और कोऑपरेटिव्स के अकाउंट्स को अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट देखते हैं। और सुंदर बात यह है कि कोऑपरेटिव के अकाउंट्स को गवर्नमेंट के ऑडिटर ऑडिट करते हैं। उनके डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जाके वहां उनके फिजिकल चीजों को वेरीफाई करते हैं, भले ही उन्होंने कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया हो। तो मैं तो इसे इस तरह से देखता हूं कि गवर्नमेंट की सर्विसेज हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। उनके ऑडिटर वहां इनपुट दे रहे हैं, चीजों को ठीक कर रहे हैं, मेंटेन कैसे करें वो कर रहे हैं। उनके रजिस्ट्रार वहां से जाते हैं और वो जाके उनकी चीजों को देखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं। और मतलब ये इट इज ए
also contribution from the government without pay anything. और अब गवर्नमेंट को भी पता है कि यहाँ से तो कुछ मिलेगा नहीं, बिकॉज दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट, दे आर, वो जानते हैं। एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो एक बैंक में दूसरे जिले में कोई स्टाफ गया कि हाँ एसएचजी का अकाउंट खोलना, एसएचजी फॉर्म है, तो मैनेजर जो गए थे वो शायद जानते थे कि नमन का क्या किस तरह का वर्किंग, उन्होंने अंदर से कहा खोल दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह की एक क्रेडेंशियल या गुडविल होने से ये हुआ। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें हमारा सबसे ऊपर बोर्ड है सर, बोर्ड के एडवाइजर्स हैं, उनके नीचे मैं डेजिग्नेटेड डायरेक्टर की पोजीशन में हूँ, और जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके मैनेजर्स हैं। मैनेजर्स के साथ एक हमारी अकाउंट ऑफिस है, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अराउंड 6 अकाउंटेंट्स हैं। उसके बाद जो हमारी फील्ड फोर्स है वो मैनेजर्स के साथ हमारी डिफरेंट लोकेशन में जहाँ प्रोजेक्ट्स होते हैं वहीं ऑफिस होती है। सपोज मैं बात करूं, हरिद्वार में अभी एक कोऑपरेटिव स्टार्ट हुई है, वहां पे कोऑपरेटिव जो स्टार्ट हुई है वो मैनेजर है, फील्ड टीम है, वो वहीं में उसको हैंडल करते हैं, और अकाउंट की टीम फाइनेंस को कंट्रोल करती है और फैसिलिटेट करती है इस प्रोसेस को। तो ये अलग अलग डोमेन के अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, एम्पेनल्ड एक्सपर्ट्स हैं, और प्रोजेक्ट के मैनेजर्स हैं, और फील्ड टीम है, और फाइनेंस टीम। तो इस तरह से बाइफर्केशन है। लीगल कंप्लायंस के लिए हमारी अलग टीम है इन टाइम, ताकि सभी चीजें चलती रहे। तो नमन इज अपडेटेड ऑर्गेनाइजेशन कि कोई भी उसका लाइसेंस, कोई भी उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे एज ऑन डेट अपडेटेड है। बढ़िया है सर, बढ़िया। आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बढ़िया है। एक लेवल से बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स है और एक्सपर्ट्स है वो बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स में, लेकिन क्षेत्र स्थाई में फील्ड में भी आपके ऑफिसर्स है, अकाउंटेंट्स है, उनके साथ बहुत सारा एक्शन है, और जो भी डिलीवर करना है उनके जरिए आप डिलीवर करते हैं। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस, ये सब उनके जरिए होता है। बढ़िया है सर, वंडरफुल स्ट्रक्चर दैट यू हैव। Thank you very much. I have another question, sir. That is about government की तरफ से बहुत सारे योजनाएं हैं, in the sense that they announce lot of policies, especially for persons with disabilities, women from marginalized communities, so on and so forth. आज तक बहुत ज्यादा लोगों को भी नहीं पता है कि इन पॉलिसीज का समरी क्या है, और जो इजीली एक्सेसिबल कर सके उन पॉलिसीज का डिटेल भी उनके पास नहीं है। आप इस वेबिनार के माध्यम से बताएंगे जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनके लिए, उनके नॉलेज के लिए, कि व्हाट आर द पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वेरियस गवर्नमेंट्स ऑफ स्टेट्स आर ब्रिंगिंग इन फॉर द बेनिफिट ऑफ persons with disabilities and also for women for their financial inclusion. ओके, थैंक यू सर। सबसे पहले सर जो चैलेंज है हमारे जो दिव्यांग साथी हैं उनके लिए चैलेंज होता है कि उनके पास उनका जो बैक सबसे पीछे बैठे हैं वो फ्रंट में कैसे हैं। जब वो फ्रंट में आ जाते हैं तो वो उनको कोई ना कोई स्किल चाहिए, तो वो उनकी स्किल को डेवलप करने के बाद में जब वो फ्रंट फुट में आते हैं तो वो नाउ दे आर रेडी टू लर्न द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड बेनिफिट्स की हाउ दे विल एक्सेस इट। तो उसमें ये है कि हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से कौन सी स्कीम ले सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए जरूरी है कि कुछ कैश हो, सो दैट ही और सी कैन स्टार्ट अ सेविंग, because when they will join this cooperative, so they need some money to deposit there for saving. तो सबसे पहले उनको पेंशन की जो स्कीम है तो वो स्कीम से उनको जोड़ना जरूरी होता है। अगर कोई वीमेन है, विडो वीमेन है, तो गवर्नमेंट से जो भी स्कीम डिफरेंट स्टेट्स में वो डिफरेंट उसका अमाउंट है, तो उस स्कीम से जोड़ना जरूरी होता है ताकि वो कैश फ्लो स्टार्ट। देन कुछ अगर उनको हाउसिंग बहुत अच्छा है, पीएम आवास एक योजना है, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर्स ने भी हाउसिंग के लिए स्कीम्स चलाई हैं, तो उनके पास एक घर हो। थर्ड उनके लिए आता है कि कुछ वो जो लाइवलीहुड करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं गवर्नमेंट के, तो वो जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहां से उनको लिंक करके कोई
महिला सपोज एम्ब्रॉयडरी की ट्रेनिंग लेना चाहती है, कोई महिला कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है, इवन कंप्यूटर सीखना चाहती हैं बच्चियां, तो वो फैसिलिटी है, और वो दिस फैसिलिटी इज फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई चार्जेबल नहीं है। तो ये ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग की स्कीम है गवर्नमेंट की, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आरसीटी में है। तो वहां पे आरसीटी सेंटर्स, जो कि कलेक्टर और एसआरएलएम के कोऑर्डिनेशन से, कहीं बैंक्स उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट बिल्डिंग है और वहां पे जाके वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। और अगर एग्री, बिकॉज वी आर वर्किंग इन रूरल एरियाज, तो एग्री सेक्टर में जो स्कीम्स हैं, वो फार्म पॉन्ड उनको कंस्ट्रक्ट करना है, डबवेल उनको, कुआ अगर उनको बनाना है, फार्म बंडिंग करना है, तो जो मनरेगा है, मनरेगा में देयर आर सो मेनी प्रोविजंस मनरेगा स्कीम्स में। और ये ऑल ओवर इंडिया एक नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम है, स्कीम है। तो मनरेगा स्कीम्स के अंदर बहुत सारी स्कीम्स, सब स्कीम्स हैं, उनका बेनिफिट ले सकते हैं। सेकंड, एनआरएलएम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये भी एक नेशनल फ्लैगशिप स्कीम्स है। इसके अंदर भी बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो ये कुछ मोटी मोटी स्कीम्स मैंने बताई जिसके बेनिफिट ले सकते हैं, बट इट डिपेंड स्टेट टू स्टेट, कि सभी स्टेट में इन स्कीम्स के प्रोविजंस चेंज हो सकते हैं, बिकॉज कहीं स्टेट का कंट्रीब्यूशन उसमें ऐड होता है, कहीं स्टेट का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। अभी आपने सुना होगा लाडली बहना, बहुत अच्छी स्कीम मध्य प्रदेश में आपने देखी होगी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौहान जी ने उसको लॉन्च किया था। तो श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, अभी तो वर्तमान में वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। तो लाडली बहना स्कीम में 1,000 रुपए से स्टार्टिंग की थी, एक महिला को 1,000 रुपीज पर मंथ। तो जब महिला के पास 1,000 रुपए कैश इन हैंड आ जाता है, तो वो उसमें उसकी प्लानिंग अच्छे से करती है कि मुझे इतना सेविंग करना है, इतनी अमाउंट सेविंग करके मुझे थोड़ा सा एक सिलाई मशीन खरीद लेनी है, ब्यूटी पार्लर की किट खरीद लेनी है, और फिर अगर कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा लगेगा तो मैं कोऑपरेटिव से थोड़ा लोन ले लेती हूँ। या फिर किसी ने सोचा कि मुझे गाय लेनी है, बट इसकी कॉस्ट तो 50,000 रुपीज है, सो आई विल गो टू द कोऑपरेटिव एंड ओपन माय अकाउंट, अपना खाता खोल के, और मैं सेविंग्स तो करूंगी और कुछ यहाँ से ले लूंगी, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम से बेनिफिट ले लूंगी। तो इस तरह से एक माहौल बनता है और लर्निंग्स इनहांस होती है, और वो ट्रेंड हो जाता है व्यक्ति, और फिर वही बात आती है कि वो उसका एक सशक्तिकरण, जिसे हम कहें, एक एम्पावरमेंट जो दिखता है वो अलग है, वो उसके चेहरे से झलकता है, फिर जो खुशी है उसकी। थैंक यू सर। जी, सशक्तिकरण का आप बहुत बड़े एजेंट है सर। यू हैव बीन एजेंट ऑफ चेंज टू ब्रिंग इन एम्पावरमेंट। अगर किसी को काम करना है तो देर आर लॉट्स ऑफ पॉलिसीज अवेलेबल। मोटे मोटे जो पॉलिसीज आपने बताए हैं, 5-6 पॉलिसीज आपने बताए, इससे बढ़कर भी पॉलिसीज हैं, लेकिन इस पॉलिसी के जरिए, इनके माध्यम से चेंज लाया जा सकता है ग्रास रूट लेवल पे। सो दैट इज व्हाट यू हैव शोन सर। थैंक यू सो मच। I have the next question, sir. If you can help me respond into this. This is typed in by one of our participants. Can disabled individuals benefit from carbon credits through organic farming? If so, what policy improvements are needed to make? Carbon credits के बारे में पूछ रहे हैं सर। जब कार्बन क्रेडिट को लेके अगर हम बात करें, तो कार्बन क्रेडिट को लेके हमारे एक्सपर्ट्स टीम है, दे आर हैविंग ए वेरी good knowledge about the carbon credit, but I'm not having full knowledge of the carbon credit. But ये है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसके साथ अगर हम एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करते हैं, तो डेफिनेटली एनी इंडिविजुअल पर्सन, और इफ इट विल बी इन ए ग्रुप, अगर ग्रुप में होगा, बिकॉज द कार्बन क्रेडिट एक उसका एक वॉल्यूम होना चाहिए, तो वो वॉल्यूम इंडिविजुअल लेवल पे नहीं आएगा, बट ऐसे इंडिविजुअल लोग अगर बहुत सारे एक साथ आ जाते हैं और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग और एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ जाते हैं, तो डेफिनेटली वो कार्बन क्रेडिट का बेनिफिट लेंगे। बट मैं फिर यही कहूंगा कि इस में हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं अभी आज ज्वाइन नहीं है वो इसमें, बट वी हैव अ टीम, सेपरेट टीम फॉर दिस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। इसके बारे में भी आपके पास कैपेसिटी है। See, you are equipped so much to help people in each and every dimension that is possible in the rural India. I think
that amounts to say how much you believe in it. इतने सारे पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारा लोगों को बिलीफ नहीं है, इसीलिए वो लोग काम नहीं कर पाते। और जी जिनको सर। बिलीफ है उनके पास जी। ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और क्षमता नहीं है जो एग्जीक्यूट करने का। लेकिन बिलीफ के साथ अगर हार्ड वर्क है और एग्जीक्यूट करने का एक उपाय है, प्लान है, तो ये पॉसिबल है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा सुधाकर जी। प्लीज सर, प्लीज। 3 गांव हैं जो कि ट्राइबल विलेज हैं। उसमें साइगोहान है, नकटी ढाना है और झिरना ढाना है। यहाँ इन्हीं की इतनी प्रॉब्लम थी कि महिलाएं सुबह को एक ही हैंडपंप था गांव से 2 किलोमीटर दूर, क्योंकि गांव में पानी नहीं था। तो महिलाएं 3 बजे उठ जाती थी और 3 बजे से पानी भरना शुरू करती थी। 200 लगभग 200 फैमिली वहां पे, 211। तो वो 3 बजे से उठ के पानी भरना शुरू करती थी और दिन भर पानी भरने का ही काम होता। तो वो उनका जो एक वर्किंग एम है, जो कि एक पोटेंशियल है उनका, वो पानी भरने में जाता। वहां वाटर शेड का काम हुआ, नाबार्ड ने सपोर्ट किया उसके लिए। उन्हीं की वाटर शेड कमेटी बनी गांव में, उसी को फंडिंग हुई। एंड नमन, उसमें नमन का जो रोल रहा है टेक्निकल एजेंसी का रहा है। हम लोग उसके साथ टेक्निकल एजेंसी में आए। आज उस गांव के हर घर में पानी है। जहां ट्यूबवेल फेल हो गए थे 1500 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट पे, आज वहां 500 फीट पे 24 घंटे पानी है। उस गांव में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे श्री शशांक मिश्र जी, वो आए। गांव के लोग ही उनको इनवाइट करने गए। उन्होंने कहा आप इनवाइट करिए। मैंने कहा नहीं, आप इनवाइट करिए, आपका गांव है। वो उन्होंने इनवाइट किया, वो आए। उन्होंने वहां पे बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम से उनको लीड कर दिया। सभी के घर बन गए हैं, पक्के घर बन गए, टॉयलेट बन गए हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने वहां पे आके जो वर्मी कंपोस्ट पिट है, खाद केंचुए से खाद बनाने के जो पिट्स हैं, वो बनवा दिए हैं। बायोगैस, गोबर गैस के वो लगा दिए, ताकि वो उसका भी यूज करके और कंपोस्टिंग कर सकें, क्रॉप्स को अच्छा कर सकें। डगवेल, मनरेगा में मोर देन 50 डगवेल्स वहां पे बने हैं। तो उनके कुओं में पानी आ गया। अब वो नहीं जाते हैं, जबकि 90% लोग माइग्रेट कर जाते हैं। अब वहां से 95% उस गांव के लोग माइग्रेट नहीं करते। उस गांव को नाबार्ड ने एक स्कीम है, जो जर्मनी और नाबार्ड के कोलोब्रेशन में, इंडिया के कोलोब्रेशन में, क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो उन तीनों गांव में वो स्टार्ट हुई है अभी। वो लोग वही कर रहे हैं, उनकी ट्रेडिशनल क्रॉप्स को फिर से रिवाइव कर रहे हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हैं। और इसमें सारे गांव के लोग, विकलांग लोग, महिलाएं लोग, ये सब शामिल होकर कर रहे हैं। अगेन नाबार्ड उसको फंडिंग कर रहा है, उनकी उस कमेटी को फंडिंग कर रहा है। वी आर, नमन इज ए टेक्निकल एजेंसी फॉर दिस प्रोजेक्ट। बढ़िया सर, बढ़िया है। थैंक यू सर। Thank you very much for adding the additional inputs on that response. We have one of our participants, Mr. Chainulu. He has raised his hand. Sir, you can go ahead with your question. शिशिर कुमार जी, मेरा प्रणाम आपको। प्रणाम प्रणाम। आप इतना सेवा कर रहे हैं तो माननीय है। आपके सेवा को तो कोई भी ज्यादा बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि आप विलेजेस में जाके विलेज को डेवलपमेंट करना एक बहुत बड़ा शक्ति है। आज की दुनिया में, हमारे इंडिया में विलेज को डेवलप करने के लिए सिंपली गवर्नमेंट जो बोलती है दिव्यांगों को पैसा दे दो और इसको महिलाओं को तो एम्पावर कर दो, लेकिन आप जो कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ क्वेश्चन एक्चुअली। जो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके उसको एक मार्ग दिखा रहे हैं, आप मार्गदर्शी बन गए हो। इन चीजों में मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंटिन्यूअसली कर रहे हैं क्या पूरी हमारा इंडिया में? इसका एक अगर उदाहरण देंगे तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया होगा। अवेयरनेस प्रोग्राम्स आपने कह दिया, हर जगह हर स्टेट में आपका नमन पहुंच रहे हैं, और इस माध्यम से आपने हमको भी ज्यादा जागृति दिया हुआ है। ऐसे अगर अवेयरनेस प्रोग्राम्स कुछ किया हो और आप तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कहीं कहीं जाके अपने नमन को अवेयरनेस प्रोग्राम्स देंगे, तो पर भी विलेजेस के जो लोग, आपने अभी कहा है विलेजेस का लोग बाहर नहीं जा रहे हैं,
खुद वहीं काम कर रहे हैं। इसका जो आप डेवलप करके अवेयरनेस प्रोग्राम देंगे, उसमें मेरा ये वो है कि सोचना है कि ये नमन और आगे बढ़ेगा और गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा डिपेंड ना होके अपनी खुद का ये डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं तो बहुत धन्य होंगे हम। जी धन्यवाद। एक तो जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की थी कि ये वॉलंटियर्स लेड मॉडल है। गांव से एक वॉलंटियर आता है, वो ट्रेंड होता है और वो इस डेवलपमेंट की प्रोसेस को लेके आगे बढ़ता है। वो जो वॉलंटियर है वो ही चेंजर है। वो ही अगर कन्वेंस है तो वो पूरे गांव में अवेयरनेस लेके आएगा। महादेव जैसे पूरे गांव में सबके लिए एक की चेंजर है। पूरे गांव में उसने, इवन पंचायत को उसने मोटिवेट किया है कि विकलांग लोगों को पहले पीएम हाउस मिलना चाहिए। महिलाओं को पहले गवर्नमेंट की जो एग्रीकल्चर की स्कीम है, इसके खेत में इस महिला के पास कुछ इनकम का जरिया नहीं है, कोई साधन नहीं है, इसके खेत में पहले कुआं खोदना चाहिए। पंचायत ने भी एग्री किया उसको। जबकि हम अवेयरनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन जब वो ऐसा कोई गांव में की चेंजर आता है और वो मोटिवेट होता है, वो जाके अवेयरनेस करता है गांव में, तो ये सक्सेस होता है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ सर। इसका एग्जांपल, जब कोविड आया था, कोविड के दौरान सब जानते हैं कि हम सब बहुत परेशानी में थे। तो हम भी सोच रहे थे कि गांव में किस तरह से कोविड को की अवेयरनेस को हम डिसमिनेट करें। हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था फिजिकल जाके करना और ये सब करना। तो ऐसे वॉलंटियर्स के साथ हमने वर्चुअल मीटिंग की। हम गांव में फिजिकल भी गए विद प्रिकॉशंस, विद ऑल प्रिकॉशंस। हमने वहां इन लोगों को एक छोटा किट किसी सपोर्ट से इनको दिया, जिसमें ये ऑक्सीजन देख सकते हैं, ऑक्सीमीटर, जिसमें ये बुखार देख सकते हैं, फीवर तो नहीं है, मास्क की छोटा एक मास्क और हैंड वॉश के लिए। तो जब हमने एक दो जगह प्रयोग किया, ये एक्सपेरिमेंट किया था, वॉलेंटियर्स ने दूसरे गांव में उस चीज को बताया उनके रिलेटिव्स को। हमारे गांव में इस तरह से हम लोग समझ पाए हैं कि किसी को फीवर तो नहीं है, जल्दी से चेक कर लो। किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑक्सीजन कम तो नहीं हो रही। ये सब चीजों को ध्यान में रख के उन्हें बताया। वहां से हमारे पास फोन है, हमारे गांव में भी करना है। तो ये प्रोसेस इस गांव से उस गांव में चली गई। तो फिर ये पूरा मोर देन 500 विलेजेस ऐसा हुआ। और उन 500 विलेजेस में जो अवेयरनेस कोविड को लेके आई, और फिर इन्होंने क्या किया कि जो इनकी कोऑपरेटिव्स है उन्होंने भी क्या किया, किसी के पास वेजिटेबल है, ठीक है, हम उस गांव में जिनके पास जो लैंडलेस वुमेन है उनको मदद करेंगे। हमारे पास राशन है, उसको नहीं मिला, हम उनको मदद करेंगे। एक फार्मर ने दूसरे फार्मर को मदद। दिस इज अवेयरनेस, पार्ट ऑफ अवेयरनेस, कि कैसे एक आदमी दूसरे आदमी की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए सोचता है। तो ये एक बहुत अच्छा हमारा एक्सपेरिमेंट रहा कि किस तरह से अवेयरनेस मैन टू मैन एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। उसमें फिर मोबाइल के थ्रू वर्चुअल मीटिंग्स, डॉक्टर्स को बुलाया हमने वर्चुअल मीटिंग्स में, बहुत सारी वर्चुअल मीटिंग्स की, स्टूडेंट्स के साथ हमने वर्चुअल मीटिंग्स की, विलेज के जो सरपंच होते हैं, पंचायत मेंबर्स होते हैं, उनके साथ भी हमने की। तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए अवेयरनेस के। और जो आपने बात कही कि नमन और जगह पे ऐसा काम करे, तो डेफिनेटली नमन को अगर कहीं इस तरह का फंडिंग सपोर्ट मिलेगा, तो नमन का मोटिव सिर्फ इतना है कि कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशन बने, कम्युनिटी उनको ओन करे और नमन वहां से विड्रॉ करे, और वो उन इंस्टीट्यूशंस में दूसरे लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे, महादेव के जैसे, ये कोऑपरेटिव के जैसे, जिसमें स्टार्टिंग में 20 ह्यूमन थी, आज मोर देन 10,000। तो हम ऐसे ही इंस्टीट्यूशन डेवलप करना, या जो इंस्टीट्यूशन आगे नहीं बढ़ पाए, बन गए हैं, उनको आगे लेके जाना, उसके फैसिलिटेशन में नमन काम करता है, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। वही हमारा ड्रीम है। तो अगर हमें और फंडिंग कहीं से अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली विल गो अन्य
स्टेट में या अन्य जगहों पे भी हम जाके जरूर अपनी सेवाएं देंगे। जी धन्यवाद। Yes, बढ़िया. Thank you very much. You're open to going to other states and other villages depending on the funding that you are likely to get. And then that will be huge help and a fillip for people to join forces and help the persons with disabilities and also affect what is called financial inclusion for everyone. Sir, one last question we can take, sir. It's already 5 p.m. I'll request Jasmeer Singh Saini ji to ask his question. So first of all, I would like to compliment Dr. Shishir Kumar, Dr. R. Prasad and Shri Sudhakar Rao ji for the excellent opportunity provided to all of us in the disability sector. Sir, let me introduce myself. I am a retired professor from National Institute of Technical Teacher Training and Research, Chandigarh. And I have been associated with disability sector for the past almost 40 years. 40 years is because, I had two sons. My younger son was born hearing impaired, 100% hearing loss. And because of the kind of efforts which we had to make for his rehabilitation, so I have had wonderful hands-on experience. So particularly in hearing and speech disability, but to some extent in other disabilities as well. So my request to you is like today we had this very excellent presentation, motivational presentation from Dr. Shishir Kumar. If you would like me to present the kind of initiative which we started here in Chandigarh and the way we try to empower person with disability through education and training program, so I would be too glad to share my experiences and also a number of case studies. So because there's a time constraint, I won't like to take much of your time. But if you would like me to be part of such like presentation, so I am available. I am based at Chandigarh, and you have ICFI University adjoining Chandigarh. So the only problem I have is I am not that technology savvy. If somebody can provide me a bit of technical support, I can definitely make a Yes, very sir. good, useful presentation for the Yes, information of yes, all yes. others. जसमेर सिंह जी, Sir. हमारे जो यूनिवर्सिटी बद्दी में है वहां से हम आपको कांटेक्ट करेंगे. My university colleagues will contact you and we will do the needful. Definitely we will understand Sure. what all you can bring to the table and we will create a value proposition for that and see how we can take it forward so that a large number of people can benefit from the power of your training, the presentations that you're going to create. We'll have a look at that, sir. Definitely. Thank you so much for offering your help. I made some unique intervention in education and training, and in fact, we tried out that model here at Chandigarh and inclusive education, particularly the professional education, that's doing very well at Chandigarh, and maybe that need to be replicated elsewhere. Possible, sir. Very much possible, sir. Thank you so much for Thank coming you. forward. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. So that's all the time we have going over one of the most useful discussions that we have had in the recent past. बहुत सारे कॉन्वर्जेशंस होते रहेंगे, बट ये जो कॉन्वर्जेशन है सर, ये तो हमारे बहुत ही यादगार कॉन्वर्जेशन रहेगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप एक सच्चे देशभक्त हैं. अगर सच्चे देशभक्त के कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, वो ये है कि ग्रासरूट लेवल पे जाए, वहां पे कुछ बदलाव लाए, उन छोटे छोटे फैमिलीज में, उनके जिंदगी में एक चेंज लेकर के उनके लिए एक फ्यूचर का एक ट्रस्ट दिलाए. आई थिंक दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए ट्रू पेट्रियट. You have believed in the turnaround at the grassroots level, sir, because India lives in these villages. A large number of people live in these villages. The literacy levels of women in these villages is lower compared to the women in urban areas. So you are working at that level also to improve their literacy levels so that the families can benefit from their literacy, from their awareness, from their education. एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के जो आपके प्लान्स है, आपके जो सिस्टम है हेल्प करने का, आई थिंक उससे एक एक फैमिली जुड़कर आएंगे. इंडिया के जो बड़ा थीम है उसमें वो लोग शामिल हो जाएंगे. इसीलिए मैं आप कहता हूं कि आप एक सच्चे देशभक्त हैं.
हम आपको कॉपी करेंगे, हम आपको एमुलेट करेंगे, हम आपको फॉलो करेंगे और जो छोटे छोटे प्रॉब्लम है अपने आसपास गांव में हम लोग जाकर देखें और आइडेंटिफाई करें कि क्या कर सकते हैं हम, व्हाट इज द स्पेस फॉर अस टू bring about some change in the lives of the people around us in the small villages. हमारे जो स्टूडेंट्स है सर, हमारे जो 11 यूनिवर्सिटीज है, उन यूनिवर्सिटीज के नेबरहुड विलेजेस में भी हम लोग देखते हैं कि रूरल विमेन, रूरल चिल्ड्रन, उनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम लोग अपने CSR क्लब, एनवायरनमेंट क्लब, ऐसे छोटे छोटे क्लब्स है स्टूडेंट्स जो चलाते हैं, उन क्लब्स के जरिए हम रीच कर पाते हैं और we keep on sensitizing the students to make some difference so that as they move forward, as they grow, they'll be able to adopt some of the villages, they'll be able to own up some transformation that they can bring about. So not just teaching engineering and management or accounts and finance, but we are also teaching them social responsibility. जो एग्जाम्पल आपने बताया है, जो सक्सेस रेट आपने लेकर के यहाँ दिखाया विद स्टैटिस्टिक्स, विद नंबर्स, विद क्लैरिटी, आई थिंक ये एक बड़ा मिसाल होगा हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हमारे खुद के लिए। और इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इंस्टीट्यूशंस की, वो वाला एंगल में भी फर्क जरूर मिलेगा। आई थिंक ये मोटिवेशनल सेशन और अवेयरनेस सेशन आपने आज 1 घंटे के लिए हमारे साथ समय बिताया है। It will be very, very useful, sir. We will be very thankful. We will write a summary and share with you. And once you clear that summary, we will put it on our archives. Those who have missed the session today, they will be able to come back and read that session along with this video, which will be edited and kept on our archives. It will be useful for a lot of leaders to have this angle of sensitivity on one hand. On the other hand, the ability to focus on the micro level problems. And the third is to believe in the possibilities that exist in rural India that we can actually turn around. And then we can also be a Sacha Deshbhakt like you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. So, ladies and gentlemen, that was a wonderful motivational session from Mr. Shishir Kumar, Naman Seva Samiti, and the wonderful change that they are bringing about in this country. We hope to learn from them as we move forward. We will request you to go through the social handles which I posted here. That will give you, those links will give you some of the micro activities on a daily basis that they conduct. So please go through the Facebook, LinkedIn, Instagram, and other social handles that I have posted there so that you will get a fantastic idea about what they are actually doing. And then there is enough scope for us to get motivated. And also we can contribute our own little bit to the turnaround at the grassroots level as well. So with this, I request all of you to join back next week on next Friday for yet another discussion with yet another leader. Have a great weekend and a good night.